किए थे in first session कि if you really want to become a Intune engineer, you want to understand about how Intune can perform the task. So these all are the features that you need to know. These all are the points that you must need to uh, know about the concept of these services. Microsoft Intune is a type of SaaS service. Three different types of options we have to establish our resources over a portal, जिसमें से एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा प्लेटफॉर्म है और तीसरा SaaS services, which is software as a services. And we just need to open our page. पोर्टल की को ओपन करने के लिए intune.microsoft.com का इस्तेमाल करने पड़ता है हमें. We can proceed and purchase one free trial license, and the free trial license uh, are applicable for 30 days with 25 different licenses. इसमें आपको 25 लाइसेंस मिलेगा और प्लस आप इसको 30 डेज के लिए आप यूज कर सकते हैं. आफ्टर 30 days you can proceed for another free trial license. We are going to manage the users, assign license to the user, enroll devices from on-premises. With the help of MDM and MAM, we are going to configure group policy, update operating system, upgrade software installation of any application to on-premises, manage and control enroll devices, monitor करना, alert लगाना या फिर उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना, ये सारी सर्विसेज हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल से परफॉर्म कर सकते हैं. We have a multiple way to enroll our devices with the help of um, bring your own device, BYOD. You can enroll bulk devices on single click. You can also perform the task of autopilot. With the help of autopilot, we can enroll multiple devices. What are the prerequisites? The important part to understand about the concept of enrollment, you should know about the basic of networking, then Active Directory on-premises ADDS object and containers. The basic desktop troubleshooting is also important, and you should know about at least one cloud platform, चाहे वो Azure हो, AWS हो या किसी भी तरीके का क्लाउड प्लेटफॉर्म की जानकारी आपके पास होनी चाहिए. इंटरनेट ब्राउजिंग जो कि कॉमन है, जो सभी को आती है अभी यहाँ पे. और उसके बाद जो पार्ट आता है ना, वो है लाइसेंस वाला पार्ट कि हमें एटलीस्ट लाइसेंस का आइडिया होना चाहिए, लाइसेंसेस कितने तरीके के होते हैं एंड हाउ लाइसेंसेस कैन वर्क. सो थोड़ा सा हमने लाइसेंस के बारे में बात की थी और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने यूजर्स मैनेजमेंट में. डायरेक्टली हम पोर्टल पे चलते हैं और एक बार और डिस्कस करते हैं अबाउट द लाइसेंस एक्टिविटी, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल पे टास्क परफॉर्म करने के लिए इंट्यून मैनेजमेंट, इन केस ऑफ इंट्यून मैनेजमेंट क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए. बहुत ही बेस से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले वी जस्ट नीड टू क्रिएट आवर अकाउंट, create Microsoft 365 account, because with the help of Microsoft 365 account we are able to access Intune services. एक ही अकाउंट से हम Microsoft Intune और Office 365 की सर्विसेज को हैंडल करते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइसेंसेस का, हाउ वी कैन मैनेज लाइसेंस, मैनेज एंड कॉन्फ़िगर लाइसेंसिंग वाला पार्ट. हम अपने लाइसेंस को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये पार्ट डिस्कस करेंगे. फिर बाद में आता है यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट, यूजर और ग्रुप को कैसे मैनेज किया जाता है. एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिवाइस इनरोलमेंट. देन we'll talk about the gap between MDM and MAM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट. ये दो मेन टॉपिक हैं जिनको हमें स्टार्ट करना है. इन द स्टार्टिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैप बिटवीन द MDM एंड MAM. सिंपल स्टेप है, डे वन है हमारा स्टार्टिंग का. In case of MDM and MAM, we are going to talk about how it can perform the task. ओपन करते हैं अपना पोर्टल, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माय फ्री ट्रायल अकाउंट. पोर्टल पे हमने ऑलरेडी फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर रखा है. सो लेट मी प्रोसीड एंड show you the steps how it's look like. This is our Microsoft 365 portal. office.com यहाँ पे टाइप करेंगे and जो भी अकाउंट आपने क्रिएट किया है, like I created my account like this, and we just need to sign in ourselves over of Microsoft 365 portal. डायरेक्टली Intune पे नहीं जा रहे हैं हम.
दिस इज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, क्योंकि जो लाइसेंस वाला पार्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से ही परफॉर्म होगा. It look like this. Go to the dots and it will give us option of admin center, because this is really important page जहां से आप यूजर को, ग्रुप को, लाइसेंस को, नया लाइसेंस को परचेज करना है, आपको बिलिंग रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो सारे टास्क हम यहाँ से परफॉर्म करेंगे. अब देखिए यहाँ पे यूजर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. अंडर द यूजर्स वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ एक्टिव यूजर. Whenever we open the page of active user, it will give you the list of number of users that you have. We are able to find Alibaba, AWS, Azure, Deepak, Dheeraj, GCP. Multiple users are available on this particular page. और इन्हीं यूजर का इस्तेमाल करके हम अपनी ऑन प्रोमाइसेस डिवाइसेस को इनरोल करने वाले हैं. दिस इज द अनदर पैनल. इसमें हमने एक अकाउंट यूज किया है. दिस इज माय रूट अकाउंट, और सेम अकाउंट हम यूज करने वाले हैं टू ओपन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल. intune.microsoft.com. No need to make any changes with your account. सेम अकाउंट हम अभी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो पूरा का पूरा पेज दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं. और इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आप देखिए डिवाइसेस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं. अंडर द डिवाइसेस, विंडोज की डिवाइसेस, आईओएस, आईपैड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, लिनक्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म को आप आसानी से इस पोर्टल पे इनरोल कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम द एनरोलमेंट, आप मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. ऑनबोर्डिंग क्या होती है, अबाउट मैनेज डिवाइसेस क्या होता है, सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं. सो वी जस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन एनरोल अवर डिवाइसेस. एक डिवाइस यहाँ पे दिखाई पड़ रही है जो हमने लास्ट टाइम एनरोल की थी. सो नॉट एन इशू, वी आर गोइंग टू एनरोल न्यू डिवाइस दैट आई कैन शो यू द प्रॉपर स्टेप हाउ वी कैन ऐड our device directly to the portal. All right, please. Hello. Yes, sir. सो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पे बहुत ही बेस से स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहला टास्क हमने क्या परफॉर्म किया, वी जस्ट साइन अप आवर सेल्फ ओवर अ पोर्टल. आई आल्सो हेल्प यू कि कैसे हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं. माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल आप बोल सकते हो, या फिर इंट्यून पोर्टल भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट 365 आर इंट्यून पोर्टल. And over a portal we are able to manage user, we are able to manage group, we are able to manage license, और starting के time पे we can also manage our custom domain. User क्या होते हैं, we'll discuss about the users. और ये अपने ऑन प्रोमाइसेस डिवाइसेस हो गई. ये आपका मैक मशीन है, या आपने विंडोज का लैपटॉप या डेस्कटॉप लगा रखा है दैट कंटेन द विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये आपका एंड्रॉयड फोन है, ठीक है, या आपने कोई लिनक्स का कंप्यूटर इस्तेमाल किया है. माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सभी तरीके के प्लेटफॉर्म को एंटरटेन करता है. नो मैटर आप लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, नो मैटर आप विंडोज का इस्तेमाल कर रहे हो, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने इन्वायरमेंट में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, किसी भी डिवाइस को आप अपने पोर्टल पे इनरोल करना चाहते हैं, डेफिनेटली वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ दीज डिवाइसेस. हम अपने इन डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, पोर्टल के ऊपर ऐड कर सकते हैं, पोर्टल के ऊपर इनको इनरोल कर सकते हैं. ठीक है. सबसे बड़ा टास्क जो रहता है ना स्टार्टिंग का, क्योंकि डायरेक्टली हम सिक्योरिटी या डायरेक्टली हम इसमें ट्रबल शूटिंग के पार्ट पे नहीं जा सकते. पहला एजेंडा ये रहेगा कि वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर, कि हमारे पास जितने भी मेथड है ना, उन मेथड का इस्तेमाल करके पहला काम तो इनरोलमेंट सीखें. इनरोलमेंट के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैप बिटवीन द एज्योर एडी कनेक्ट, बल्क इनरोलमेंट और ऑटो पायलट. ये सारे टास्क, ये सारी सर्विसेज हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को ऐड करेंगे, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन मैनेज योर सर्विसेज प्रॉपरली विद आवर इंट्यून पोर्टल. जहां पे कोई प्रॉब्लम आती है, जहां पे इफ यू फील लाइक कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आया, या यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली आस्क, बिकॉज यू नो दैट हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जब भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे इंट्यून पोर्टल पे, every day you are getting a new information for about Azure, about Microsoft Intune. तो लाइक एज अ पेंडिंग नहीं रखना है आपको कोई भी टास्क. यू ऑल्सो नीड टू क्रिएट योर ओन नोट्स. हार्ड कॉपी में आप नोट्स बनाएंगे, ताकि क्लास खत्म होने के बाद, पूरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट हो सके, जो आप अपने वर्क इन्वायरमेंट में यूज कर सको, जो आप अपने काइंड ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन में आप आसानी से उनको यूज करके
इंटरव्यू को, किसी भी तरीके के इंटरव्यू को क्लियर कर सको। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। श्योर सर। सो अब पहला क्वेश्चन आता है कि जो एक नया बंदा है, बिल्कुल अभी जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर, उसको डायरेक्टली पोर्टल पे ले जाना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, लाइक अनेबल टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी गाइड यू अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट योर ऑन फ्री ट्रायल अकाउंट। क्योंकि जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट के अंदर, वो आपको फ्री ट्रायल एक्सेस देते हैं, चाहे वो फ्री सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो फ्री काइंड ऑफ लाइसेंसिंग हो। हर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन देता है कि पहले आप सीखो, इफ यू गुड विद दैट देन यू कैन परचेज। सो एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल के ऊपर भी ना हम फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। आपको सिंपल सा office.com मेंशन करना है। office.com मेंशन करने के बाद प्रोडक्ट्स पे जाना है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन फॉर एंटरप्राइज, क्योंकि हम अपने एंटरप्राइज इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले हैं। सो वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ फॉर एंटरप्राइज, और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टू सेट अप आवर फ्री ट्रायल अकाउंट। अगेन वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सी प्लान्स एंड प्राइसिंग, क्योंकि हम फ्री ट्रायल लेने वाले हैं। सी प्लान्स एंड प्राइसिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि अभी मेरे पास फ्री ट्रायल में कौन कौन सा लाइसेंस अवेलेबल है। Please use Microsoft 365. Do not proceed with Office 365. Office 365 ओल्ड पोर्टल है। Office 365 में लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड सर्विसेज है। आज के डेट में कोई भी कंपनी, चाहे वो 15 बंदों की ही क्यों ना कंपनी हो, they are not going to use the feature of Office 365. They always try to use the services related to Microsoft 365. क्यों? माइक्रोसॉफ्ट 365 लेटेस्ट पोर्टल है, ऑफिस 365 का अपग्रेडेड वर्जन है। ऑफिस 365 की सारी सर्विसेज प्लस एडिशनल सिक्योरिटी आपको मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 पे। ये कुछ लिस्ट है। बाय डिफॉल्ट आपको जो यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है विच इज नॉट इन आईएनआर, क्योंकि हमने जो अभी लोकेशन अपनी नहीं बताई कि किस लोकेशन में हम अपनी चीजों को स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो E3 लाइसेंस है, E5 लाइसेंस है, F3 लाइसेंसेस है, जिसमें से E3 हमारे लिए फ्री ट्रायल फॉर मंथ अवेलेबल है, जिसमें आपको 365 की माइक्रोसॉफ्ट 365 की सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। विंडोज इंटरप्राइज के आपको लाइसेंसेस मिल जाते हैं, 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है, सिक्योरिटी आइडेंटिटी एक्सेस मिलता है, को पायलट की सर्विसेज है, और ऐसे करके बहुत सारे एड ऑन फीचर्स आपको मिलते हैं। यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर। आपको क्या करना है, सिंपल सा इस फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। जब भी आप प्रोसीड करते हो, फ्री ट्रायल पे क्लिक करने के बाद इट विल आस्क यू सम इंफॉर्मेशन, लाइक इट विल आस्क यू कि भाई आप एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो हमें, जिससे हम आपके फ्री ट्रायल अकाउंट को सेटअप कर सके। तो आई एम गोइंग टू यूज माई जीमेल अकाउंट। दिस इज माई जीमेल अकाउंट। हम इस जीमेल अकाउंट के थ्रू अपना फ्री ट्रायल सेटअप करने वाले हैं। सेटअप अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, आप जिस प्रोफाइल पे काम करते हैं, और यहाँ पे आपको देना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, यू नीड टू प्रोवाइड योर कंपनी नेम, कोई सा भी कंपनी नेम दे सकते हैं। साइज क्या है कंपनी की, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डू यू हैव एनी वेबसाइट? नो, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज अबाउट माय वेबसाइट। और you need to provide the information about your current location. So we are in India, so I'm just going to choose my location, and no need to check market, otherwise ये काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इट विल गिव यू ऑप्शन सेंड अ वेरिफिकेशन कोड ऑन योर रजिस्टर नंबर। हमने अपना मोबाइल नंबर मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। सो यू विल सेंड द वेरिफिकेशन कोड। आई हैव ऑलरेडी यूज, क्योंकि मैं पिछले लगभग 3.5 4 साल से ऑफिस 365 की सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, तो बहुत सारे फ्री ट्रायल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो आई एम ऑथराइज टू जस्ट प्रोसीड विद पे एज यू गो। ये हमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा है फ्री ट्रायल क्रिएट करने का। आपके केस में यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल लाइसेंस के लिए जब ये कोड आएगा, कोड के बाद जब आप वेरीफाई करेंगे ना, आफ्टर दैट इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ पेमेंट मेथड, जहाँ से आप अपना पेमेंट के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों अप्लीकेबल है, बट मेक श्योर कि वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। ये सारी सर्विसेज मिलेगी, 25 लाइसेंसेस मिलेंगे आपको 25 यूजर के लिए, और इनकी जो वैलिडिटी है वो है पूरे के पूरे 1 महीने, यानी नेक्स्ट 4 फेब को ये हमारा लाइसेंस एक्सपायर होगा। 25 दिन बाद या 28 दिन बाद आप अपने अकाउंट को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, टू अवॉइड द अनवांटेड ट्रांजेक्शन।
ये हो जाएगा, फ्री ट्रायल अकाउंट आप क्रिएट कर पाओगे? लेट मी नो प्लीज। यस सर। सर ये जो कैंसलेशन का जो आप बोल रहे हैं 25 दिन बाद, तो इसमें ऑप्शन आता है क्या? मतलब हम उसी यहीं पे आ पे? रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, स्टार्टिंग में हाँ, लाइसेंस मैनेज करने जा रहे हैं। सो अब हाँ, आपने फ्री ट्रायल लाइसेंस परचेज कर लिया, अपना क्रेडिट कार्ड लगा लिया, अपना डेबिट कार्ड लगा लिया, 30 दिन की वैलिडिटी मिल गई। और इफ यू फील लाइक कि आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ ऑटो पेमेंट, है ना, आप ऑटो पेमेंट डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका वो अमाउंट पे करे, राइट? सो ऑटो पेमेंट आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, you have to remove your license before 30 days. आप माइक्रोसॉफ्ट को बोल दो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, राइट? विल मैनेज माय बजट एंड देन वी कैन प्रोसीड। सर मैंने रजिस्टर किया था, तो उसके बाद जो उसमें लाइसेंसेस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा का, तो हम्म उसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। तो उसके बाद तो फिर कोई ट्रांजैक्शन होगी नहीं ना, अगर डीएक्टिवेट कर दिया है तो। हाँ, आप लाइसेंस को डीएक्टिवेट कर दो, नो नीड टू पे एनी अमाउंट, उसके बाद हमें कोई चार्जेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। cool, so let's proceed for the next। अभी हम यहाँ पे जैसे ही साइन अप कर पाएंगे अपने आप को ओवर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, इट लुक लाइक दिस, ये हमारे इस पेज की तरीके से दिखना स्टार्ट कर देगा। जब आप रूट अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपको ये पहला पेज दिखाई पड़ेगा, और पहले पेज पे आपको जाना है एडमिन सेंटर पे। एडमिन सेंटर इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से हम सारी चीजें मैनेज करने वाले हैं। पहला काम हम देखते हैं कि कैसे हम अपने लाइसेंस को डीएक्टिवेट या कैंसिल करेंगे। एडमिन सेंटर पे जाने के बाद आप बिलिंग वाले पार्ट पे आ जाओ। बिलिंग वाले पार्ट के आने के बाद यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द लाइसेंसेस। अंडर द लाइसेंसेस मेरे पास कई सारे लाइसेंसेस हैं। बिजनेस प्रीमियम स्टैंडर्ड है, बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड है। 23 लाइसेंस आपके अभी करंट टाइम पे अवेलेबल है। 25 लाइसेंसेस हमने फ्री ट्रायल में परचेज किए थे। ऑफिस 365 के 25 लाइसेंस पूरे अवेलेबल है, हमने एक भी यूज नहीं किया। इंट्यून का एक लाइसेंस है, वो भी अप्लीकेबल है। और बिजनेस प्रीमियम हमारा लाइसेंस जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। इफ यू फील कि अब हमें कंटिन्यू नहीं करना है, तो जिस लाइसेंस को आपको ब्लॉक करना है आप उस लाइसेंस को ओपन करिए, प्रॉपर्टीज को, मैनेज सब्सक्रिप्शन डिटेल पे जाएंगे, और यहाँ से आप अपने लाइसेंस को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस लाइसेंस क्योंकि 30 डेज होने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस लाइसेंस को यहीं से डिसेबल कर सकते हैं। आप देखिए, दो लाइसेंस हमारे ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 बिजनेस प्रीमियम को हमने क्या कर रखा है, डिसेबल कर रखा है। ऑलराइट, सो अब जिस लाइसेंस को आपको रिमूव करना है, जैसे ये एक्टिव है, इसको रिमूव करना है, सो वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज, और इसको, इस सब्सक्रिप्शन को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन का ऑप्शन है। आपको लगता है कि लाइक थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि 1700 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा, कब, 19 तारीख के बाद से। तो अभी अपने पास टाइम है, तो मैं इसको 15 तारीख तक या 16 तारीख तक क्या करूंगा, यहाँ से जाकर कैंसिल कर दूंगा, ताकि ये ऑटो रिन्यू ना हो और हमारे ऊपर कोई चार्जेस ना आए। लाइसेंस पार्ट मैनेज करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यू नो वेरी वेल अबाउट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम कोई भी लाइक एज एडिशनल पेमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज वी आर लर्निंग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज कैन परफॉर्म द टास्क। ये हो गया लाइसेंस वाला पार्ट। अब लाइसेंस के पार्ट के बाद लेट्स टॉक अबाउट द गैप बिटवीन एड ऑन लाइसेंस और पैकेज लाइसेंस। अभी हमने जितने भी लाइसेंसेस के बारे में बात की, उसमें से ज्यादातर जो लाइसेंसेस हैं वो हमारे पैकेज लाइसेंस में कंसीडर किए जाते हैं। एक एड ऑन लाइसेंस है। द मीनिंग ऑफ पैकेज लाइसेंस एंड एड ऑन लाइसेंस, अगर हम इनकी बात करें, तो पैकेज लाइसेंस और एड ऑन लाइसेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि क्लाइंट कहता है मुझे ना ऑफिस 365 की सर्विसेज नहीं चाहिए। पहला है पैकेज लाइसेंस, और दूसरा है अपने पास एड ऑन लाइसेंस, है ना। पैकेज लाइसेंस और एड ऑन लाइसेंस। पैकेज लाइसेंस में आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 लाइसेंस आता है,
E5 लाइसेंस आता है, बिजनेस प्रीमियम आता है, बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे लाइसेंस मिलेंगे, ठीक है। ऑफिस 365 E3 लाइसेंस आएगा, और F1 लाइसेंस आएगा, और F3 लाइसेंस आएगा। अब ये जो लाइसेंसेस हैं इनको बोला जाता है पैकेज। एड ऑन क्या होता है? P1 हो गया या P2 हो गया, इसको काइंड ऑफ एड ऑन लाइसेंस बोलते हैं। प्लान 1 हो गया, प्लान 2 हो गया, मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5, ठीक है। मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 और E5, ये दोनों लाइसेंसेस आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए एड ऑन लाइसेंस। एड ऑन लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जो लाइसेंसेस आप, राइट, जो लाइसेंसेस आप परचेज करना चाहते हैं फॉर द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, जो लाइसेंस आप फॉर स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, वो हमारा कंसीडर किया जाएगा एज ए, you can consider it as a kind of for the specific environment, a specific task। समझ में आ रही चीजें प्लीज? यस सर। जी सर, ठीक जी। है। लाइसेंस अगर आपके पास है ना, तो आगे जाकर के आप एज एज्योर एडमिन टास्क परफॉर्म करोगे तो आपको जस्टिफाई करने में आसानी होगी। मल्टीपल प्रोफाइल होती है एज्योर इंट्यून पोर्टल पे। एक इंट्यून एडमिन होता है, एक इंट्यून डेवलपर होता है, एक इंट्यून इंजीनियर होता है, राइट। और हर एक बंदे की प्रोफाइल अलग होती है। डेवलपर का मतलब है वो केवल इनरोलमेंट देखेगा, बाकी का टास्क उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इंजीनियर जो है छोटे छोटे टास्क असाइन करेगा, वो ग्रुप पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, या अपडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, या स्पेसिफिक टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। उसका बिलिंग से कोई मतलब नहीं है, उसका लाइसेंस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप एज ए इंट्यून एडमिन को वर्क करते हो, तो आपको अपने इंजीनियर्स को भी देखना है, डेवलपर्स को भी देखना है, और साथ ही साथ जस्टिफिकेशन के लिए आपके अलावा कोई से किसी दूसरे बंदे से कंपनी नहीं पूछेगी कि आप इतना लाइसेंस कहाँ यूज कर रहे हो। तो आपके पास ये सारी चीजें रेडी होनी चाहिए कि अगर कल की डेट में हमारी कंपनी या हमारे मैनेजर हमसे डिस्कस करते हैं कि इतना लाइसेंस का कॉस्ट कहाँ जा रहा है, तो एटलीस्ट यू कैन जस्टिफाई, और उनको गाइड कर सको, कंसल्ट कर सको कि हमारे पास कई सारे मेथड हैं जिससे हम लाइसेंसिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। चलो, बिना लाइसेंस के कुछ नहीं होगा। I'm going to show you the real time example. Multiple machines we have, Mac computer, Windows machine, Android device, ये सारी डिवाइसेस है अपने पास जिनको हम वन बाय वन करके इनरोल करना सीखेंगे। बट बिफोर दैट, इनरोलमेंट के साथ साथ कुछ टर्म्स आपको मैनेज करना है, वो है यूजर और ग्रुप का। क्योंकि जब हम लाइसेंस असाइन करते हैं, या तो आप यूजर पे लाइसेंस असाइन करोगे, या तो ग्रुप पे लाइसेंस असाइन करोगे। ग्रुप पे तब करेंगे जब आपके पास मल्टीपल लाइसेंसेस हैं, मल्टीपल यूजर्स को लाइसेंस असाइन करना है। यूजर पे कब यूजर है, आप केवल टॉपिक है अपना माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का। एमएस इंट्यून के अंदर जो पहला टॉपिक है ना, वो है यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि विदाउट यूजर और विदाउट ग्रुप वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी टास्क। पहला, यूजर को कितने तरीके से मैनेज किया जाता है। वी कैन कॉन्फ़िगर आवर यूजर बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड। एक आपका यूजिंग इंट्यून पोर्टल के थ्रू यूजर मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से आप इसको मैनेज कर सकते हो, जो अभी हमने ओपन किया है। और तीसरा, आप अपने उसी यूजर को कहाँ से यूजर मैनेज कर सकते हो, एज्योर एडी पोर्टल। अभी एज्योर एडी पोर्टल नहीं है, इसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, है ना। इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पोर्टल। सेम यूजर को आप अपने इंट्यून पोर्टल से, सेम यूजर को आप अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन पोर्टल से, और आप अपने यूजर को क्रिएट कर सकते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ
माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर से। सो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने यूजर को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनको मैनेज किया जाता है। तीनों ऑप्शंस को देखते हैं। बैक टू माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, और यहाँ पे पोर्टल ओपन करने के बाद वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। यूजर पे क्लिक किया, एक्टिव यूजर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एक्टिव यूजर का ऑप्शन मिल रहा है हमें, और मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू क्रिएट अवर यूजर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंट्यून पोर्टल पे अगर आप इंट्यून पोर्टल ओपन करते हो तो यहाँ से भी आपको यूजर्स मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, और यूजर पे क्लिक करने के बाद वो सारे यूजर्स आ जाएंगे जो आपके एक्टिव यूजर में थे। अलीबाबा, AWS, एज्योर, दीपक, धीरज, GCP। अब देखिए अलीबाबा, एज्योर, AWS, दीपक, धीरज, मल्टीपल यूजर, सेम यूजर्स आपको यहाँ पे भी दिखना स्टार्ट कर दे। मतलब ये कि आप अपने यूजर को यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। इज दैट करेक्ट प्लीज? यस सर। क्वेश्चन यस ये सर। है कि यूजर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं यूजर, या क्यों क्रिएट करते हैं ग्रुप। जो आपके ऑन प्रोमाइसेस डिवाइसेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि भाई आपके पास जो ये डिवाइसेस है ना, मैक की मशीन है या विंडोज की मशीन है या एंड्रॉयड का कंप्यूटर है, आप इस डिवाइस को डेफिनेटली इसका नेम होगा लाइक एज माई पीसी और डेमो पीसी, कोई सा भी एक कंप्यूटर नेम जरूर होगा। अब आप इस डिवाइस को पोर्टल पे ले आना चाहते हैं, आप अपने इस डिवाइस को क्या करना चाहते हैं, पोर्टल पे ले आना चाहते हैं। सो जब आप पोर्टल पे ले आते हैं इसको, तो ये कहलाता है इनरोलमेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनरोलमेंट। और इनरोलमेंट के बाद ही मेन टास्क हमारा स्टार्ट होता है। बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी टेक द RDP ऑफ आवर बेस मशीन, ताकि हम विंडोज से शुरुआत कर सकें। ये अपना ऑन प्रोमाइसिस का डिवाइस है जिसमें हमने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल कर रखा है, और इस VMware वर्कस्टेशन के अंदर लेट मी इंस्टॉल वन विंडोज 10 मशीन, वैसे ऑलरेडी है यहाँ पे। सो लेट मी ओपन माय विंडोज 10 कंप्यूटर, मस्ट बी लॉग इन विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। और इस विंडोज 10 के कंप्यूटर को हम इनरोल करने वाले हैं पोर्टल के साथ। एक टेस्टिंग पर्पस के लिए इस डिवाइस को हम अपने पोर्टल पे इनरोल करेंगे। इनरोल करने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या फीचर्स दिखाई पड़ते हैं आफ्टर इनरोलमेंट। मशीन को इनरोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स यूज होंगे, और फिर इनरोलमेंट के बाद हमें क्या क्या ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। इज दैट राइट प्लीज? बैक आ जाते हैं, यहाँ पे मशीन को टर्न ऑन होने देते हैं। सबसे पहले हम अपना यूजर क्रिएट करेंगे। चाहो तो आप उस यूजर को ग्रुप में रख लो, चाहो तो उस यूजर को इंडिविजुअल इस्तेमाल कर सको। दोनों पोर्टल अपने पास अप्लीकेबल हैं टू सेटअप आवर यूजर। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट 365 इंट्रा एडमिन से लॉगिन कर लो। इंट्रा एडमिन कुछ इस तरीके से दिखेगा। आइडेंटिटी में जाओगे तो ये इंट्रा आईडी के पेज पे ले जाएगा। अगर आप 365 एडमिन पे रहोगे तो इस तरीके के पेज दिखाई पड़ेंगे। ये इंट्रा एडमिन सेंटर है जहां से भी आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम यूजर को मैनेज किया जा सकता है। वो सारे यूजर्स दिखाई पड़ेंगे जो आपने क्रिएट किए थे। या फिर डायरेक्टली इंट्यून पे जाओ, और इंट्यून पे हमारे पास कई सारे यूजर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कुछ यूजर्स को हम यहाँ से करते हैं रिमूव, ताकि हम फिर से बेस से डिस्कस कर सकें और आपको क्लियर तरीके से समझा सकें। आप यहाँ से डिलीट करोगे तो ये हर जगह से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये पूरा का पोर्टल सिंक्रोनाइज है आपस में। सो एक नया यूजर यहाँ पे आप क्रिएट कर लो फटाफट से। क्रिएट यूजर पे जाते हैं, एंड लेट मी क्रिएट अ यूजर विद नेम ऑफ टेलनेट, जो हमने डिलीट कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अब हम टेलनेट नाम का एक नया यूजर यूज कर रहे हैं। दिस इज माई ऑन डोमेन। दो डोमेन है यहाँ पे, एक microsoft.com पे है, और microsoft.com पे है, जो कि डिफॉल्ट कॉम्प्लीमेंट में मिला था। कई बार क्या होता है कि यूजर डोंट वांट टू परचेज देयर डोमेन फ्रॉम GoDaddy, है ना। अगर हमें डोमेन नहीं परचेज करना है, godaddy.com से डोमेन नहीं परचेज करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आप अपना खुद का डोमेन लगा, सॉरी, ऑन microsoft.com के डोमेन पे जा सकते हो। ठीक है, सो लेट मी प्रोसीड विद दिस ऑप्शन, और यहाँ पे आप डिस्प्ले नेम में अगेन टेलनेट ही दे देते हैं। टेलनेट प्रोवाइड करने के बाद ये आपका डिफॉल्ट पासवर्ड होगा। यहाँ पे आप कोई सा भी पासवर्ड दे दो, ये मैंडेटरी है यूजर का पासवर्ड प्रोवाइड करना।
then proceed with next. प्रॉपर्टीज में आप attributes मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, किसका मेंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल, सिटी, सारी इंफॉर्मेशन देना है तो दे सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड विद एनी ग्रुप, अभी अपने पास कोई ग्रुप भी नहीं है और हम इसको किसी ग्रुप का मेंबर भी नहीं बनाना चाहते। चलिए, हमने प्रोसीड किया एक ग्रुप बनाने के लिए, यहाँ पे प्रोसीड किया। इंतजार करते हैं थोड़ा सा कि कितना टाइम लगता है इस ग्रुप को क्रिएट होने में। पेज को रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो इंट्यून यूजर था वो हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, मींस वी आर एबल टू एक्सेस द यूजर। हम अपने यूजर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो टेलनेट है ना, अभी इसको लाइसेंस नहीं असाइन किया क्योंकि वी जस्ट क्रिएटेड। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करोगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा। आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है लाइसेंसेस का। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी बहुत सारा चेंजेस किया है पोर्टल के ऊपर कि आप किसी भी यूजर के ऊपर लाइसेंस असाइन करना चाहते हो तो प्लीज उसके लिए आपको बैक होना ही पड़ेगा। आपको इंट्यून पेज लाइसेंस असाइन करने का ऑप्शन नहीं देगा, आपका इंट्रा एडमिन सेंटर लाइसेंस असाइन करने का ऑप्शन नहीं देगा। आपको लाइसेंस असाइन करना है तो प्लीज आप इसी वाले पेज का इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब गैप क्या होता है, अगर आप लाइसेंस नहीं असाइन करते हैं तो आप डिवाइस भी इनरोल नहीं कर पाओगे। अगर हम लाइसेंस नहीं असाइन कर रहे हैं ना, तो वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू इनरोल द डिवाइस, बिकॉज इसी बात का वो चार्जेस लेते हैं, इसी बात का माइक्रोसॉफ्ट को हमें पे करना पड़ता है। यूजर हमारे पास है, पासवर्ड हमारे पास है। अगर आप चाहते हो कि ऑन प्रोमाइसिस की डिवाइस इनरोल हो, अनलाइसेंस वाली यूजर से आप कभी भी इनरोल नहीं कर पाओगे। लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल। दिस इज अवर ऑन प्रोमाइसिस डोमेन, ऑन प्रोमाइसिस विंडोज 10 मशीन, और डेफिनेटली हम इसको ओपन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये मेरा विंडोज 10 कंप्यूटर है। ओपन सीएमडी, सीएमडी ओपन करने के बाद होस्ट नेम पे क्लिक किया और अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नेम दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप U4AQC समथिंग। इसको हम चेंज कर लेते हैं, sysdm.cpl करोगे ना तो ये आपको माय कंप्यूटर के पेज पे ले जाएगा। थोड़ा सा अजीब नेम दिखाई पड़ रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं डेमो पीसी के नाम से, ठीक है। ये कंप्यूटर नेम हमने रिप्लेस कर दिया, ओनली फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कि ये जो ऑन प्रोमाइसिस मशीन है इसको हम क्लाउड पे ले जा रहे हैं, क्लाउड इन द सेंस इंट्यून पे ले जा रहे हैं। और बाकी का इसका जो टास्क है ना हम इंट्यून से ही मैनेज करेंगे। अब ऑन प्रोमाइसिस पे बंदे लॉग इन करेंगे बट वो क्या करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे पोर्टल से, कि वो कंट्रोल पैनल देखें, वो राइट क्लिक कर पाए, वो इंटरनेट पे कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, वो उनकी लोकेशन क्या है, वो इस लोकेशन में काम नहीं करेंगे, वो वो बाहर जा करके इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आउट ऑफ कंट्री जा करके इस मशीन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये सब हम डिसाइड करेंगे, राइट। और यही कंपनी चाहती है बेसिकली, ये कंपनी चाहती है कि हम अपने एम्प्लॉयज को जो डिवाइसेस दे रहे हैं, मोबाइल फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जो भी डिवाइस कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रखेगी। एवरीवन प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। होस्ट नेम हमने रिप्लेस किया था थोड़ी देर पहले और वो हो चुका है। इज दैट क्लियर? ये सर, सो सर मेरे को ये पूछना है, जैसे हमारा जैसे ऑफिस का एनवायरनमेंट है, तो सपोज आप यूट्यूब एक्सेस कर रहे हो तो उसमें ये आता है दिस वेब पेज इज ब्लॉक्ड, तो वो इंट्यून की ही हेल्प हो रही है ना, इंट्यून से ही हो रहा है ना वो सब? अगर आपके डिवाइस है तो या इंट्यून से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हाँ, केवल ऑफिस प्रोमाइसेस पे यूट्यूब नहीं देख पा रहे हो, बाहर वाले नेटवर्क से देख पा रहे हो, तब फायरवॉल की जिम्मेदारी है। अच्छा, ओके। अगर आप ऑफिस प्रोमाइसेस में यूट्यूब नहीं चला पा रहे हो, ऑफिस के इंटरनेट से यूट्यूब नहीं चला पा रहे हो, तो उस केस में फायरवॉल जिम्मेदार है, क्योंकि फायरवॉल में छोटी सी सेटिंग करनी होती है किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन अगर आप घर पे भी ला करके अपने खुद के पर्सनल इंटरनेट से भी नहीं देख पा रहे हो,
तो वो कहीं ना कहीं इंट्यून की बैकएंड से जीपीओ लगा रखी है और इंट्यून ने आपकी यूट्यूब की साइट को क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। ऑलराइट प्लीज। अब इस डिवाइस को हम क्या करने वाले हैं, इनरोल करने वाले हैं, बट अभी टेलनेट यूजर को ना कोई भी लाइसेंस नहीं असाइन किया। देखते हैं क्या हम कर पाते हैं। किसी भी डिवाइस को इनरोल करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, अभी बिल्कुल बेस से चल रहे हैं। ये रहा टेलनेट यूजर विदाउट लाइसेंस। किसी डिवाइस को इनरोल करने के लिए जब आप BYOD का स्टेप फॉलो करते हैं, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस का स्टेप फॉलो करते हैं, तो आप डिवाइस की स्टार्ट मेनू की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, सेटिंग्स पे जाओ, अकाउंट्स पे जाओ। अकाउंट्स पे जाने के बाद वर्क आर स्कूल का ऑप्शन आएगा, एक्सेस वर्क आर स्कूल का ऑप्शन आएगा। वैसे अभी ये हमारी डिवाइस कनेक्टेड थी support@समथिंग से, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट। अगर आपकी डिवाइस किसी दूसरे पोर्टल से कनेक्टेड है, किसी पर्टिकुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, तो मेक श्योर कि आप उसको रिमूव करो पहले, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है, प्रीरिक्विजिट में बहुत ज्यादा कुछ प्रीरिक्विजिट्स नहीं है। आपके सिस्टम पे इंटरनेट चलना चाहिए, 20 से 25 MBPS की इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए, एंड बस यूजर का लाइसेंस होना चाहिए इंट्यून पोर्टल के ऊपर। बाकी मेथड अपने पास सही है, कई सारी मेथड है, अभी बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने अगले 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 स्टेप पे भी डिस्कस करेंगे कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सर ये जो onmicrosoft.com है, ये जब हम अकाउंट सेटअप करेंगे तब अपने आप डोमेन आ जाएगा ना, मतलब नाम के हाँ, अकॉर्डिंग? अगर अपने पास अभी करंट टाइम पे डोमेन नहीं है ना, अभी अपने पास करंट डोमेन नहीं है, सो उस कंडीशन में आपका onmicrosoft.com बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, वी सक्सेसफुली रिमूव्ड आवर मशीन फ्रॉम द स्पेसिफिक अकाउंट। अब हम अपना जो यूजर अभी थोड़ी देर पहले तैयार किया था इंट्यून टेलनेट के नाम से, उस टेलनेट यूजर से हम इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट लाइसेंस, दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट कि अगर ये एरर आता है तो कहीं ना कहीं हमारे लाइसेंस की गलती है। इस पेज पे जाने के बाद, वर्क आवर स्कूल के पेज पे जाने के बाद, इनरोल ओनली इन डिवाइस मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। ये आपको ओपन करके देगा पेज, जहाँ पे जो यूजर आपने क्रिएट किया है ना, वो यूजर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। teachmecloud.net है आई थिंक, telnet@teachmecloud.net। नेक्स्ट किया इसको, ये पासवर्ड मांगेगा, सॉरी बिफोर पासवर्ड इट विल आस्क यू MDM डिस्कवरी URL। हम
इंडिविजुअल डिवाइस को इनरोल कर रहे हैं, सेलेक्टेड डिवाइस को इनरोल कर रहे हैं, दैट इज वाई ये आपसे एमडीएम यूआरएल की डिमांड कर रहा है। एमडीएम यूआरएल क्या होता है? डिस्कव एमडीएम क्या होता है? डिस्कवरी यूआरएल होता है, और इसको हम यूज करते हैं BYOD की तरीके से। व्हाट इज BYOD? ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, जो 1 by 1 के लिए होता है। अब ये डिस्कवरी यूआरएल मिलेगा कहाँ पे? सो डिस्कवरी यूआरएल के लिए आपको इंट्यून पे जाना पड़ेगा। दिस इज अवर इंट्यून पोर्टल, दिस इज अवर इंट्यून पोर्टल। और इस इंट्यून पोर्टल के ऊपर आप डिवाइसेस पे जाएंगे। कौन सी डिवाइस इनरोल करना है? विंडोज की डिवाइस इनरोल करना है। सो टू enroll the Windows device, we just need to click here, and after an hello, can you hear me, guys? यस सर। अब ये जो MDM यूआरएल है, MDM का डिस्कवरी यूआरएल है ना, उस MDM डिस्कवरी यूआरएल को कैसे एक्सेस करेंगे? वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। विंडोज की डिवाइस है तो डेफिनेटली विंडोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप विंडोज के ऑप्शन को ओपन करोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा इनरोलमेंट। एनरोलमेंट में पहले ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको ऑटोमेटिक इनरोलमेंट, इसको ओपन करो आप। विंडोज इनरोलमेंट, ऑटोमेटिक इनरोलमेंट। नीड टू एक्टिवेट P2 लाइसेंस, क्योंकि ये मेरा फ्रेश अकाउंट है, सो आई जस्ट नीड टू एक्टिवेट इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 5 से 7 मिनट का एक्टिवेट होने में, बिकॉज यू नो दैट 30 डेज की वैलिडिटी होती है। अगर हम वैलिडिटी यूटिलाइज कर लेंगे तो वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द टास्क, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू लाइक एज अ एक्टिवेट दिस लाइसेंस। P2 लाइसेंस को एक्टिवेट करते हैं। फ्री ट्रायल इज अप्लीकेबल।
P2 लाइसेंस फ्री ट्रायल हम एक्टिवेट कर लेते हैं, सेम क्रेडिट कार्ड जो मैंने लगाया था उसके लिए। नो नीड टू पे एनी अमाउंट, 0 आ रहा है इसमें अमाउंट, हम इसको कर देते हैं एक्टिवेट पहले तो। ठीक है, मैनेज सब्सक्रिप्शन, देखते हैं क्या स्टेटस है सब्सक्रिप्शन का और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर। P2 लाइसेंस इज एक्टिवेटेड फॉर नाउ, आप इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। 4th ऑफ फरवरी तक इसकी वैलिडिटी है, 1 महीने की वैलिडिटी हमें मिल गई, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने एक्टिवेट किया, गो बैक टू द इंट्यून पोर्टल, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही P2 लाइसेंस को एक्टिवेट करते हो ना, अब देखिए डिस्कवरी यूआरएल का ऑप्शन मिल गया आपको, MDM टर्म्स ऑफ यूज यूआरएल, MDM डिस्कवरी यूआरएल, MDM कंप्लायंस यूआरएल। तो कंप्लायंस हमें अभी कॉन्फ़िगर नहीं करना। आप इस MDM डिस्कवरी यूआरएल को करो कॉपी, यहाँ से कहाँ पे ले जाना है, जहाँ पे आप एनरोलमेंट कर रहे हो। आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट, वैसे मुश्किल है पेस्ट होना क्योंकि वर्चुअल मशीन से मैक मशीन पे होता नहीं। नोट पैड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कॉपी किया यहाँ पे पहले, और इसी डिस्कवरी यूआरएल को हम करते हैं कॉपी फॉर द एनरोलमेंट पर्पस। ठीक है, अब आ गया। डू यू थिंक आर वी एबल टू एनरोल द डिवाइस? No, sir, because we have no license, I guess. लेट्स चेक क्या एरर आता है। वी जस्ट वांटेड टू सी द एरर बेसिकली। आप इसको ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। इन फ्यूचर अभी कभी जब आप टास्क परफॉर्म करोगे ना, और आपको ये एरर दिखाई पड़ेगा 0x80180018, है ना। अगर आपको कभी भी ऐसा एरर दिखाई पड़ता है, इट मीन्स दैट जो लाइसेंस आपने असाइन किया है वो काम नहीं कर रहा है, पहला। या तो यूजर के पास लाइसेंस नहीं है, या फिर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है अपने लाइसेंस को। क्योंकि कभी कई बार क्या होता है कि यूजर को लाइसेंस असाइन करने के बाद भी हमें ये एरर देखने को मिलता है। वो कब होता है? जब आप अपने लिमिट सेट कर देते हैं। एक लाइसेंस से जब नंबर ऑफ डिवाइसेस को इनरोल करते हो, सो उसमें आप लिमिट भी सेट कर सकते हो कि यू आर गोइंग टू ऑथराइज ओनली फॉर 10 यूजर, ओनली फॉर 5 यूजर, ओनली फॉर 2 यूजर। तो जब आप लिमिट सेट कर दोगे ना, तब आपको ये एरर दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। ऑल गुड प्लीज। हम अपने डिवाइस को इनरोल नहीं कर पाए क्योंकि लाइसेंस नहीं था। अब चलते हैं बैक और इस प्रॉब्लम को करते हैं रिजॉल्व। प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए इंट्रा आईडी की माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के अलावा कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता। इवन इंट्यून का पोर्टल भी हमारी हेल्प नहीं करेगा टू असाइन द लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब आप टेलनेट यूजर को ओपन करो, सिर्फ इनरोल करना है या ऑफिस 365 की सर्विसेज भी यूज करना है।
आप पोर्टल को ओपन करो, यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाओ, लाइसेंस एंड एप्लीकेशन पे जाओ। अपने पास बिजनेस स्टैंडर्ड है और उम्मीद है कि बिजनेस स्टैंडर्ड में ना इंट्यून फ्री में मिलता है। मतलब अगर आपने इंट्यून लाइसेंस दे दिया तो शायद आप अपनी डिवाइस इस यूजर को डिवाइस एनरोलमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार मैं क्लिक करता हूँ इस पे और इसको सेव चेंजेस पे जाता हूँ। लाइसेंस असाइन किया और एक्चुअली लाइसेंस सिंक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पेज को करते हैं रिफ्रेश और हमारे इस यूजर के पास एक माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड का लाइसेंस मिल गया और इसके अंदर आई थिंक इंट्यून का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। कैसे चेक करेंगे? अब आप जाएंगे बिलिंग वाले पार्ट पे, लाइसेंस वाले पार्ट में, टू गेट द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड। और इस बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाइसेंसेस हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन से मिलेगी इंफॉर्मेशन, चलिए कोई नहीं, वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे क्लिक किया, वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ लाइसेंसिंग बिलिंग। यहाँ से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइसेंस असाइन नहीं कर सकते बट प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। कौन सा लाइसेंस है? बिजनेस स्टैंडर्ड। लेट मी चेक। ओके सॉरी। Microsoft 365 पेज, गो टू द एक्टिव यूजर। टेलनेट की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे जिस जहाँ पे लाइसेंस असाइन किया है, एप्लीकेशन एंड लाइसेंस, और यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा इसी के पास में। और यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि इनट्यून का अगर लाइसेंस है तब तो काम चल जाएगा हमारा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वैसे तो इसमें इनट्यून का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है बट लेट मी आइडेंटिफाई, शायद दे रिमूव्ड इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइसेंस प्लान। सो एक बार कोई दिक्कत नहीं, फिर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्लियर ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस। telnet@reachmecloud.net। डिस्कवरी यूआरएल हम ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड। enrollment only, telnet@teachmecloud.net।
प्रोवाइड डिस्कवरी URL, क्लिक नेक्स्ट और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं हम। We don't have a license, right? मतलब Microsoft 365 इस बिजनेस स्टैंडर्ड लाइसेंस जो है वो Intune की सर्विसेज को कंटेन नहीं कर रखा है। मे बी सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि थोड़ा सा हमें इंतजार भी करना चाहिए जब भी हम लाइसेंस असाइन करते हैं ना। सो यू हैव टू वेट अप टू मिनिमम 10 to 15 मिनट हमें इंतजार करना चाहिए, देन वी कैन प्रोसीड। सो एक बार गो थ्रू करो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का और फिर उसके बाद रिज्यूम करते हैं। इज दैट करेक्ट? ताकि लाइसेंस भी हमारा अपडेट हो जाए। ऑल राइट प्लीज। ओके सर। ओके सर। ठीक है, हम 10 मिनट में कनेक्ट करते हैं।
Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so we are still not able to enroll it. एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करके पेज को enroll करने की कोशिश करता हूँ, and after that we are going to assign the license for Microsoft Intune directly. Office 365 का जो लाइसेंस हमने असाइन किया which is related to the business standard, और I don't think कि उसमें Intune का फीचर इन्वॉल्व है. Same error, so please go back to our Microsoft Intra Admin Center और Microsoft 365 इन एडमिन सेंटर पे जाकर के सेम यूजर को हमने सेलेक्ट किया. गो टू द लाइसेंस एंड एप्लीकेशन. अब सर आपके आपकी पास स्क्रीन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. आर यू एबल टू सी? नहीं सर. Only Teams window is showing. नाउ नो सर. No. now you guys are able to see my screen. Yes, sir. ठीक है. I'm going to assign the license of Intune to directly our talent user. 365 का है ऑलरेडी. एक बार I'm just going to assign the Intune plan 1. एक ही लाइसेंस है, एक बार इसको असाइन करते हैं and save changes. इंतजार करते हैं थोड़ी देर का और फिर से हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे. लेट्स ट्राई टू लाइक enroll our device. सर जो हमने P2 लाइसेंस लिया था उसमें भी नहीं आता क्या इंट्यून? P2 में नहीं है, मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 में है. लेट मी चेक. मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E3 एंड मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 दोनों में लाइसेंस मिलते हैं. वी जस्ट असाइन, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए.
Meanwhile, let me restart our virtual machine जिसको हम enrollment करने की the enrollment that we are trying to perform for this Windows machine. Let me restart and try again. Same procedure, internet access है ही है. Let me try to enroll it again. Accounts पे जाते हैं, access worker school पे जाते हैं, enroll only in device management पे जाते हैं, and we just need to provide the information. Telnet at ठीक है, we enrolled successfully और 2 से 3 मिनट का इंतजार हमें और करना पड़ेगा और आपकी जो डिवाइस है वो पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी. We just need to open the page of Intune. डिवाइसेस पे जाते हैं. नंबर ऑफ डिवाइसेस अभी 0 है सभी में, विंडोज में, iOS में, मैक में, एंड्रॉयड में, लिनक्स में सारी डिवाइसेस आपकी 0 है. बट वी ऑलरेडी इनरोल्ड और जो मेथड हमने इस्तेमाल किया एनरोलमेंट के लिए वो था BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस. इंडिविजुअल डिवाइस को हमने एनरोल किया, सो दैट इज वाई विच इज कंसिडर्ड एज ए ब्रिंग योर ऑन डिवाइस. अभी हम पेज को थोड़ा सा इंतजार करते हैं एंड डेफिनेटली वी विल गेट द एक्सेस ऑफ आवर डिवाइस जो हमने एनरोल किया.
We should wait for a few more minutes. We just assigned the license and enrolled our devices, so maybe it will take time of 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट का time लग जाता है. But next time, whenever we use the same user to enroll any other devices, वो आपको immediately 5 से 7 मिनट के अंदर highlight होना start हो जाती है. So can you please just go through the points that we discussed today? क्या क्या हमने point discuss किया and what are the points that you like as write in your notes? And do you have any question regarding the topics that we completed today? सर जी सर ये निखिल. जो वर्चुअल मशीन वगैरह जो आपने क्रिएट की थी वो आप बताएंगे क्या? हाँ, VMware वर्कस्टेशन बताएंगे ना. अभी तो जस्ट बेस अच्छा समझा अच्छा। रहे हैं अभी. हाँ हाँ VMware वर्कस्टेशन का टूल है अपने पास. I'll share the tool with you guys that you can create your own virtual machine. क्योंकि बेस मशीन को कभी इनरोलमेंट करने के लिए हम आपको like as encourage भी नहीं करेंगे. Please do not make any changes with your base machine, है ना. छोटी सी गलती आपका ऑन प्रोमाइसेस का डेटा लॉस कर सकता है. तो प्लीज ट्राई टू परफॉर्म ऑल प्रैक्टिकल विद द वर्चुअल मशीन, क्योंकि वो हम फ्री रहते हैं. कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तब भी हमारा काम चल जाएगा. विंडोज की एक डिवाइस यहाँ पे आ गई है और उम्मीद है कि ये डेमो पीसी ही होगा. और जिसको हमने अभी इनरोल किया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, ये हमारा यूजर जो यूज किया, ये टाइम, ये डेट, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारी वर्चुअल मशीन की आ गई है जो हमने इनरोलमेंट किया है. अब ऐसे ही बहुत सारे टास्क हैं. जैसे वीएम की प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट. तो एक बार गो थ्रू कर लो. इफ यू फील लाइक कि आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी. और फिर हमारा रेगुलर टाइम है 11 o'clock to 1 o'clock with 10 minutes of break, Saturday, Sunday, and we are going to cover all the content within 7 to 8 weekends. Is all right, please? सर एक्चुअली मेरी जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी नाइट शिफ्ट